नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्ला कादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर यह है कि तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू को गैर ज़रूरी गलत इल्ज़ामों में जो जेल में डाला गया है उसके ख़िलाफ़ आज 9वें रोज़ भी करनूल के धरना चौक पर एहतजाज जारी है, भूख हड़ताल जारी है। आज 9वें रोज़ मुस्लिम अक़लियतों की जानिब से बड़े पैमाने पर भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुस्लिम अक़लियतों ने कहा कि हम चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं क्योंकि वो रियासत की तरक्की में काफ़ी अहम किरदार अदा कर चुके हैं। इस मौके पर शहर करनूल से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ कायदीन जिसमें एडवोकेट जहांगीर, मंसूर, अली ख़ान सूरी के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने हमारे बज़्म आईना से बातचीत की और अपने ख़यालात अपने सामने रखे। आप देखिए ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्ला कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसका लिंक आप शेयर करते हुए अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस रखें। जगन तेरी तानाशाही, जगन तेरी तानाशाही, जगन तेरी तानाशाही, जगन तेरी तानाशाही, जगन तेरी ताना टीजी भरत गाరి నాయకత్వం, टीजी भरत गाరి నాయకత్వం, टीजी भरत गाరి నాయకత్వం। जय तेलुगुदेशम, जय तेलुगुदेशम। जगन तेरी तानाशाही, जगन तेरी तानाशाही, जगन तेरी तानाशाही, जगन तेरी तानाशाही। सीएम 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 जगन तेरी तानाशाही, जगन तेरी तानाशाही, जगन तेरी तानाशाही। साइको 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 साइकिल साइकिल साइको 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 साइकिल साइकिल। जगन तेरी तानाशाही, जोर से बोलो जगन तेरी तानाशाही, जगन तेरी तानाशाही, जगन तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जगन तेरी तानाशाही। जय तेलुगुदेशम, जय तेलुगुदेशम। नारा चंद्रबाबू गाరి నాయకత్వం, చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం, చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం। నారా లోకేష్ గారి నాయకత్వం, నారా లోకేష్ గారి నాయకత్వం, టీజీ భరత్ గారి నాయకత్వం। जगन तेरी तानाशाही, जगन तेरी तानाशाही, जगन तेरी तानाशाही, जगन तेरी तानाशाही। थैंक यू। ఈరోజు మా కర్నూలు అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ టీజీ భరత్ గారి సార్ గారి యొక్క ఆదేశానుసారము ఈరోజు మేము వినాయక చవితి సందర్భంగా హిందూ సోదరులకు సోదరులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు మా ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాము। ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసి ఈరోజుకు 7వ రోజు అవుతుందన్నమాట। ఈ యొక్క చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క అరెస్టుకు నిరసిస్తూ ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తం మీద ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్, బీసీలు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నారు సంఘీభావంగా। కానీ వాస్తవాలు నేను సూటిగా వైఎస్ఆర్ పాలకులకు 4 ప్రశ్నలు అడగదలుచుకున్నాను। ఆ 4 ప్రశ్నలు ఏమిటంటే, మొదటి ప్రశ్న, గుజరాత్లో మొదలైనటువంటి సిమెంట్స్ కంపెనీ యొక్క శిక్షణ నైపుణ్యత గురించి అక్కడ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నటువంటి సిమెంట్ సంస్థను చంద్రబాబు నాయుడు గారు 2015లో రాష్ట్రంలో కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసినారు। ఆ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటప్పుడు
ఈరోజు మీ దగ్గర ప్రభుత్వ సలహాదారుగా ఉన్నటువంటి శ్రీ అజయ్ కలం గారు ఆ రోజు మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క కాన్వాయ్లో ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేసినారు. అంటే ఆ సిమెంట్స్ కంపెనీ యొక్క ఎంఓఈ జరిగేటప్పుడు అజయ్ కలం గారికి అన్ని వాస్తవాలు తెలుసు. కానీ ఈ రోజైనా మీ దగ్గర ప్రభుత్వ సలహాదారుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనను ఎఫ్ఐఆర్ లో ఎవరు విచారణకు ఎందుకు పిలిపించలేదని చెప్పేసి వైసీపీ పార్టీ నాయకులకు సూటిగా అడుగుతున్నాను. రెండవ ప్రశ్న ఏమిటంటే, చంద్రబాబు నాయుడు గారు సిమెంట్స్ కంపెనీ డిజైన్టెక్ తో రాష్ట్రంలో 2 లక్షల పైన విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇప్పించినారు. ఆ శిక్షణ ఇప్పించిన దానిలో 70 నుంచి 80 వేల మంది ఈరోజు ఐటీ జాబ్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయం వాస్తవం కాదా, మీకు తెలియదా అని చెప్పేసి ఈరోజు వైసీపీ నాయకులకు అడుగుతున్నాను. మరియు ముఖ్యంగా ఇంకొకటి, సిమెంట్స్ కంపెనీ లేదు, ఈ ఎంఓయూ అనేది అబద్ధము, డొల్లా కంపెనీలు అని డొల్లా అసైన్మెంట్ అని చెప్పేసి ఈరోజు వైసీపీ నాయకులు వాడవాడ చెప్తున్నారు. నేను వాడికి ఒకటే అడుగుతున్నాను, మీరు 2019 అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు తర్వాత మీ రాష్ట్ర కేబినెట్ మంత్రి అయినటువంటి స్వర్గీయ గౌరవ మంత్రివర్యులు గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు 2020 ఫిబ్రవరిలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సందర్శించి అక్కడ సిమెంట్స్ కంపెనీ డిజైన్టెక్ సంయుక్తంలో ఏర్పాటు చేసేటువంటి శిక్షణ సంస్థలను పరిశీలించి అక్కడ ఉన్నటువంటి శిక్షణ కార్యక్రమాలు చాలా బేసిక్ గా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆనాటి మంత్రివర్యులు చెప్పడము నిజం కాదా అని చెప్పేసి ఈరోజు వైసీపీ పాలకులను నేను అడుగుతున్నాను. మరియు నేను అడుగుతున్నది ఒక విషయము, ఇలా మాట్లాడుకుంటూ పోతే ఎన్నో వాస్తవాలకు మీరు సమాధానం చెప్పలేరు. కానీ సమాధానాలు చెప్పాల్సి మీకు ఉంటుంది. మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బెయిల్ మీద బయటికి వచ్చిన తర్వాత ప్రజాక్షేత్రంలో ఈ యొక్క అంశాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో తీసుకొని పోయి ప్రజలలో చైతన్యం తీసుకొని వచ్చి వాస్తవాలను మేము ప్రజల ముందు తీసుకొని వచ్చి ఆ రోజు మేము ప్రజలతో తిరుగుబాటుకి మీ సిద్ధంగా ఉండాలి, ప్రజలు వచ్చిన చైతన్యాన్ని మీరు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఈరోజు మా యువ నాయకుడు భరత్ గారి యొక్క ఆదేశానుసారము మేము ఇంకా ప్రజల్లో ఉధృతంగా ఈ యొక్క డూప్లికేట్ చేసినటువంటి కేసులు, ఫాల్స్ కేసుల మీద ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొని వస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను. జై టీజీబీ, జై చంద్రబాబు నాయుడు. रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको रियासत आंध्र प्रदेश हुकूमत जगन मोहन रेड्डी के बारे में मालूम है। तानाशाही हुकूमत इस रियासत में जारी है। इसी के मकसद से नारा चंद्रबाबू नायडू साहब को बेबुनियाद केस में फंसाकर आज जेल के अंदर राजमंड्री में रखा गया है। उसके लिए काफ़ी एहतजाज हो रहा है। खाली पेटों से हजारों लोग आंध्र प्रदेश में और दूसरे स्टेटों में भी बैठकर एहतजाज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस एहतजाज को और भी आगे लेके जाएंगे। हिंदुस्तान और आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इसका एहतजाज हो रहा है। मैं इसके ताल्लुक से थोड़ी बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा। जगनमोहन रेड्डी साहब एक पत्थर के दिल इंसान हैं। इनका दिल पत्थर का है और इनका दिल कभी पिघलेगा नहीं। ये तानाशाही हुकूमत यहाँ से जाना है। आंध्र प्रदेश एक अच्छी तरह से डेवलप होना है आगे चल के। ऐसा पूरे लोगों में एक दहशत आज फैलाकर ये लोग केसेस बनाकर बेबुनियाद केस बनाकर फंसाने की रंजिश कर रहे हैं। लेकिन तेलुगुदेशम पार्टी एक रबर की तरह है, आप उसको कितना दबाएंगे उसी की तरह वो रिवर्स आएगी। ये पार्टी छोटी पार्टी नहीं है। आप देख रहे हैं आईटी प्रोफेशंस, स्किल डेवलपमेंट प्रोफेशंस और जॉब होल्डर्स हर एतबार से एहतजाज कर रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी साहब, आपको ये मालूम होना चाहिए, आपने जो नवरत्नालु शुरू किया उसमें कितनी कटौती किया, कितनी कटौती आपने की। सब में कटौती कर नवरत्नालु में आपने आलू बचा दिया पब्लिक के लिए। अब वो आलू किसी काम का नहीं है और नवरत्नालु को इस तरह से आपने कत्ल किया कि उसके खतला हो गए। तो आवाम यही चाह रही है कि ये तानाशाही हुकूमत में ये देते कुछ नहीं, लेते बहुत कुछ है। तो हमारे जो सदर है चंद्रबाबू नायडू साहब, उन्होंने आपको कोई सवालात करने के लिए रोड पर आकर एहतजाज करे। आपसे ये सवालात करने के जो
आपने रेत के ऊपर और डीजल पेट्रोल के ऊपर जो आपने लगामें बढ़ाई, उस लगामों के ऊपर वो सवाल कर रहे थे। इसलिए आपने उनको एक बेबुनियाद केस में राजामंड्री जेल के अंदर, जहाँ पे आपने देखा, सारे आवाम को मालूम है कि ये आज तक सीबीआई ने या किसी ने चार्जशीट फाइल नहीं किया। अब उनका जो 19 तारीख को कल एक हाई कोर्ट में पिटीशन आने वाला है, उसमें चंद्रबाबू नायडू साहब ये बेबुनियाद केस में से बाइज्जत बरी होंगे, ये हमारा मानना है और अल्लाह से यही दुआ है। और जगनमोहन रेड्डी साहब ने कचरे से लेकर बिजली का बिल, डीजल, पेट्रोल और काफ़ी रेत के, सीमेंट के, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे उन्होंने लगाम लगाकर बढ़ावत कर दी। आज मुसलमान बहुत घाटे में है। क्यों? करनूल के मुसलमान सबसे ज़्यादा घाटे में है। उर्दू यूनिवर्सिटी नहीं बना, हज हाउस नहीं बना, हज हाउस बना तो भी कड़पा में बना, आज तक खुला नहीं। टिटको हाउसेस नहीं दिए आपने कोई भी ऐसा मुसलमान के लिए फायदे का काम करनूल के अंदर या आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं किया। जो भी किया आई वाश के लिए किया। दुल्हन स्कीम आपने नहीं दी पूरी तरह से, उसमें शर्तें लगा दी। आपने विदेशी विद्या नहीं दिया, आपने उसमें शर्तें लगा दी। आपने ईद का तोहफा नहीं दिया, उसमें आपने जीरो कर दिया। तो ये जो आपका नाकामयाबी है, इसको छपाने के लिए आज आप चंद्रबाबू नायडू साहब को बेबुनियाद केस में फंसाकर उनको आप हमारा गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जगनमोहन रेड्डी साहब, आप देखिए एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप देखिए और सुनिए। एक गला दबाने के बाद हजारों गले आज आंध्र प्रदेश में और इंटरनेशनल लेवल में उठ गए हैं। तो आपको इसमें अकल और आपका दिल पिघलना है, ये हमारा चाहत है। आने वाले दिनों में अगर कल 19 तारीख को इंशाअल्लाह हमारे लीडर अगर बाहर नहीं आएंगे तो एहतजाज और होगा। हमारे पेट खाली हैं, लेकिन हमारी जुबानें, अकल और दिल चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ है। इसके साथ मैं ये बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा यहाँ की जो बैठक है, ये इंसाफ और जो है बेइंसाफ के ऊपर है, क्योंकि आज तेलुगु देशम पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू साहब ने जो इस दुनिया को एक सही राह दिखाई थी और इसमें हिंदुस्तान के अवाम को और हिंदुस्तान के नौनिहाल बच्चों को और हिंदुस्तान के नौजवानों को उनको जीने की राह बताई और उनके फैमिलीज़ के डेवलप होने के लिए राह बताई थी। ऐसे चंद्रबाबू नायडू साहब को जो साइको जहन रखने वाले जगनमोहन रेड्डी साहब ने जो बेबुनियाद केस, अरे 118 करोड़ रुपए जिसका जो है हमारे पास हिसाब नहीं है, इसके अंदर जो है पूरी की पूरी यानी करप्ट हुआ है बोल के ये लोग जो इल्ज़ाम लगाए हैं। चंद्रबाबू नायडू साहब ऐसी शख्सियत है, किसी को खाली अंगली बताकर कहते कि ये काम करो तो 1000 करोड़ का काम करने वाले तैयार हैं। ये कहते हैं कि 118 करोड़ तुम जो है अविनीति करें, ये कहाँ की तुम्हारी जो है अकल है? किस बुनियाद पे तुम किस आदमी को अरेस्ट कर रहे हो? ये तुम्हारी जो है अकल की कमी और तुम्हारी नासमझी है। तुम ऐसे लीडर को जो है आज अरेस्ट कर तुम अपना गड़ा खुद खोद के जो है कल दफन होने वाले हैं। तुम ये दफन पब्लिक करके रही है कि आपको हकीकत ये है कि तुमने जो है क्या क्या वादे करके आए। तुम्हारा वादा एक तो पूरा हुआ, सब झूठे वादे रहे तुम्हारे। तुमने कहा कि जो है हमने सीपीएस रद्द कर देंगे, आप बोल रहे कि मुझे मालूम नहीं था सीपीएस क्या है। वो सीपीएस क्या तो चंद्रबाबू का स्कीम समझा था मैं। ऐसे बेबुनियाद बात जिसे तुम्हारे को इसके बारे में कोई भी ये नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन करना तुम्हें नहीं आता। तुम जो है खालिस किसी के ऊपर जो है तुम जुल्म करना चाह रहे हैं। जुल्म अल्लाह जो है पसंद नहीं करते। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, यहाँ के अतराफ के जो हमारे लीडर्स हैं, ये भी जो है उनके साथ पूरा हाथ में हाथ मिलाकर थाली बजा रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आपने इस करनूल को, आपने इस रायलसीमा को, डिप्टी सीएम इस रायलसीमा का आदमी, क्या 1 लाख रुपया कोई सैंक्शन करने की अथॉरिटी आपके पास है?
आप तक कोई काम किया है आपने? सिर्फ काली हजाम का, चाय का दुकान का और फंक्शन हॉल का रिबन कट करने के सिवा तुमने कुछ नहीं किया। कौम का तुमने जो है सामने, कौम को सामने रखकर अपना फायदा उठाया, मगर किसी कौम का फायदा आपका नहीं हुआ। अरे चंद्रबाबू नायडू साहब, हमने उनको जो है ये डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 3 एमएलए दिए थे। ऐसे शख्स ने 125 करोड़ 125 एकड़ जमीन के ऊपर 20 करोड़ रुपए सैंक्शन करके उर्दू यूनिवर्सिटी दिया है, तो वो उर्दू यूनिवर्सिटी को आपने 1 रुपया दिया। यहाँ के अभी एमएलए साहब है वो भी माइनॉरिटी है, डिप्टी सीएम रायलसीमा के हैं वो माइनॉरिटी है। क्या उर्दू को आप नहीं समझ सकते? उर्दू की डेवलपमेंट आपको नहीं चाहिए? आपने सीएम को कितने बार मिला उर्दू यूनिवर्सिटी के ऊपर आपने? तो ये सारे चीजें जो है इनसे कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ जो है लोगों को गुमराह करने वाले बातें करते आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज से शुरू होगा, आगे के दिनों में आप क्या किए हैं और क्या करने का वादा किया था, इन तमाम चीजों का हिसाब आज से शुरू होगा और आज से आपका हिसाब लेना भी पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज चंद्रबाबू नायडू को 14 साल हुकूमत किए उन्होंने सीएम हो। वैसे अच्छे आदमी के ऊपर आज जो जगन मोहन रेड्डी गलत अफवाह लगा के केस में अटकाए। आज कर्नूल के अंदर हमारे इंचार्ज टीजी भरत साहब क्या वादा किया है बोले तो अब काम ये नेक्स्ट एमएलए अगर सिर्फ भरत साहब हमारे हो जाएंगे, माइनॉरिटी के लिए बहुत से काम करने के लिए वादा किया है। और उर्दू यूनिवर्सिटी का जाके रिजिट मारे भरत साहब, पूरा वहाँ जाने के बाद टीडीपी हुकूमत ने चंद्रबाबू नायडू साहब कर रहे थे, पूरा उसका सिलाब वगैरह पूरा पड़ गया है, उसको फिनिशिंग नहीं कर रहे हैं। माइनॉरिटी के लिए कौन सोच रहा है करोड़ में? आज 5 साल गुजरने आ गए, माइनॉरिटी को ये काम हुआ नहीं है। इंशाल्लाह उर्दू इसको ने हमारे स्कूल में 4 पलंग दिए हमारे भरत साहब को। इन्होंने स्कूल में कोई मजहब देखे नहीं, कोई कौम देखे नहीं। वो डिलीवरी के लिए उधर आने मुस्लिम आते, हिंदू आते, क्रिश्चियन आते, भरत साहब आ गए, कोई मजहब को देखे नहीं, कौम देखे नहीं। वैसे हमारे भरत साहब करोड़ के अंदर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट बार एमएलए भरत साहब ऊपर टीडीपी जय साइकिल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले हमारे टीजी भरत साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पे जितने भी टीडीपी के लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं और हमारे साथी हैं, सब पूरे बैठे हुए हैं। पूरे यहाँ हमारे माँ और बहनें भी बैठे हुए हैं कई देर से। हमें आज पूरा सभा से कुछ खाए बिगर ऐसा ही बैठे हुए हैं, क्योंकि हम ये दुआ कर लेते बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब जल्द से जल्द रिहा हो जाए। हम इस खुशी से और अल्लाह से दुआ कर लेते बैठे हुए हैं। हमारा बोलने का मकसद यही है, एक चंद्रबाबू नायडू साहब ऐसे लीडर है, पूरे आंध्रा ही नहीं, पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए एक नमूना बन के उन्होंने सभी को बता चुके हैं उन्हें क्या तरीके के एक बड़े लीडर है बोलने का। आज सभी जगह, सभी कंट्रियों में भी और हमारे आंध्रा में भी, और एक हमारे ममता बनर्जी सीएम, उन्हें भी कई आवाज उठाकर बोले कि ये एक बहुत अच्छे लीडर है। कई ऐसे जिलों में, कई ऐसे गांवों में ऐसे बहुत से एक अच्छे इंसान है बोलकर सबको मालूम है। क्योंकि हमें बहुत दिल से हमें अल्लाह से दुआ कर रहे हैं चंद्रबाबू साहब जल्द से जल्द रिहा हो जाओ बोलकर। हमें अब सभी हमारे दोस्त, हमारे लीडर, माँ और बहना सभी खाना नहीं खाए सरकार यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें शुक्रिया। मेरा नाम शेख रमेश बादशाह। 9 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमें नारा चंद्रबाबू नायडू को जो है इल्ज़ाम डाल के उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम डाल के अंदर कर दिए हैं। उनको रिहा करने की डिमांड में हम लोग यहाँ पे हर रोज़ भूख हड़ताल कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू साहब जो है एक लीडर, विजनरी लीडर है। उनको अब ये इस तरीके से बात को इस तरीके से डालना, इल्ज़ाम डालना बहुत बुरी बात है। ये जगन मोहन रेड्डी साहब को इस बात का ख्याल करना चाहिए। यहाँ आंध्र प्रदेश में हिंदू मुसलमान भाई सब एकता रहते हैं, हम लोग भाई भाई से रहते हैं। हम लोगों को तोड़ना, किसी को बर्बाद करने की बातें कर रहे हैं, ये पार्टी वाले जो सब गलत बातें हैं। आने वाले इलेक्शनों में ज़रूर हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे वैसे भी प्रभुत्वम को। पूरे लोग मिलके तो ये वैसे भी प्रभुत्वम को हटा देंगे। हमें ये इंशाअल्लाह होने वाला है आने चल के। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम महबूब बादशाह है, मैं 7वीं वार्ड से हूँ।
मैं इस आवाम को यही बताना चाह रहा हूँ, अब तक के गवर्नमेंट में माइनॉरिटी के लिए दुल्हन पदम के नीचे है, अब तक सिर्फ 5,700 लोगों को ही पैसा दिया है, जबकि 4.5 साल में कुछ भी याद नहीं आया है। और 4.5 साल में उनको कुछ भी याद नहीं आया है, सिर्फ अब याद आया माइनॉरिटी को 1 लाख दुल्हन पदम देंगे बोलते। अब तक फिर इसको बर्थ सर्टिफिकेट कंडीशन रखे गया है। बर्थ सर्टिफिकेट किस लिए है, आधार कार्ड किस लिए रखा है? अगर से आपको इतनी ही मोहब्बत है माइनॉरिटी से तो आपको दुल्हन पदम चालू करिए। इस्लामिक बैंक कहाँ पे गया है? और 200 यूनिट का करंट फ्री बोले आप, 200 यूनिट का करंट कहाँ पे गया है? इसलिए कि आप चंद्रबाबू नायडू साहब को अरेस्ट किया गया। जबकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर अंग्रेजों की गवर्नमेंट चल रही है, यहाँ के सिर्फ आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट नहीं चल रही है। जो भी आवाज उठाई, इस आवाज को दबाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम।